Dear students, Assalamu alaikum. I am your instructor Asma Zahir and I welcome you all in the 16th lecture of the course Introduction to Exceptionalities. In in this lecture, we will discuss about the educational considerations for gifted children, their services or placement, their transition into adulthood, and how we can adapt and use the technology for gifted children. So today's lecture is very important as in our last lecture we discussed the definition, prevalence, etiology, classification and characteristics and assessment of children with gifted or talents. So in this lecture we will discuss their educational considerations. We have to consider three major questions whenever we want to propose and we want to adapt the current program to take into account the special needs of exceptional children or special needs of gifted children. So what are these questions? First is where will the adaptation take place? पहला क्वेश्चन ये है कि adaptation होगी कहाँ पर, मतलब प्लेसमेंट ऑप्शंस क्या हैं, उन्हें कहाँ पे प्लेस किया जाएगा. सेकंड, व्हाट कंटेंट चेंजेस विल बी नेसेसरी. कंटेंट क्या होगा, हमने उन्हें पढ़ाना क्या है. कंटेंट क्या होगा, हमने उन्हें टीच क्या करना है. थर्ड इज हाउ विल द इंस्ट्रक्शन बी मॉडिफाइड, और हम कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करेंगे, किस तरह से इंस्ट्रक्शन को मॉडिफाई करेंगे. सो इन तीन क्वेश्चंस को आंसर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम एक्सेप्शनल नीड्स को मीट करने की बात करते हैं. Much of the early attention given to the education of students with gifts and talents focus on the location of educational adaptations. So, the probable reason is that moving students around in various grouping creates administrative challenges. Thus, parents, principals, and superintendents become involved and concerned. Actually, location is less important than what take place once students arrive at the new location. So the change was made in order to provide services and curriculum that would not have been possible in the normal settings. So हम किस चीज़ की तरफ आते हैं जो सबसे ज़्यादा बेस्ट या सूटेड आप चीज़ कह सकते हैं, मॉडल कह सकते हैं, वो रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन का मॉडल है. एज वी हैव डिस्कस्ड दिस मॉडल इन आर all disabilities that we have discussed, and in future we will also discuss this model with relevance to all disabilities that have been left in our outline to be discussed. So in this, I want to discuss with you the RTI model with reference to the children with gifts and talents. So the RTI model is also appropriate in thinking about the special educational needs of students with gifts and talents. As with other children with special needs, the general education curriculum should be extended to meet the needs, educational needs of these students. सो इसमें भी ऐसे ही होना चाहिए. जैसे आप जनरल एजुकेशन के करिकुलम को एक्सटेंड किया जाता है, उसी तरह से इन बच्चों के करिकुलम को भी एक्सटेंड करने की ज़रूरत है ताकि इनको प्लेस किया जा सके, इनकी एजुकेशनल नीड्स को पूरा किया जा सके. हम जब बात करते हैं आरटीआई के हवाले से कि आरटीआई के थ्री टायर्स हैं, टायर वन, टायर टू, तो टायर थ्री. जब डिसेबिलिटीज़ पे बात आती है तो हम क्या करते हैं कि टायर वन में अगर बच्चा नहीं चल पा रहा तो हम उसे इंटेंसिव इंस्ट्रक्शन के साथ टायर टू में भेज देते हैं. वहाँ पर भी वो नहीं चल पाता है तो फिर मज़ीद इंटेंसिव इंस्ट्रक्शन और रेमेडियल इंटरवेंशंस के लिए हम उसे टायर थ्री में भेज देते हैं जो कि स्पेशल एजुकेशन कहलाता है. लेकिन गिफ्टेड के साथ क्या केस है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको समझना बहुत इंटरेस्टिंग है. सो टायर वन रिप्रेजेंट the general education classroom. There are special additions needed to meet the educational needs of these students. जनरल एजुकेशन क्लासरूम है लेकिन कुछ स्पेशल एडिशंस हैं ताकि उन बच्चों की नीड्स को पूरा किया जा सके. ये सोचते हुए कि कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए, इस एक्ट को फॉलो किया जाता है और उनकी बेसिक प्रोफिशिएंसी से लेकर उनके मास्टरी लेवल तक काम करने की कोशिश की जाती है ताकि बच्चों को एडवांस्ड लेवल की इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जा सके. In some instances,
The problem-based learning approach will first present a problem to all students in Tier 1. Tier 1 में वैसे ही तमाम बच्चों को एक जैसी इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप की होंगी, एंड देन sort out some students for additional assignments or projects based on their performance or the original problems. फिर हम क्या करेंगे कि जो हमने बच्चों को ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने के लिए दी, पहले तो हमने टायर 1 में रहते हुए उनको लर्निंग मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ हम उन्हें लेकर गए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक यूज़ करते हुए उनको ऐसे प्रोजेक्ट ऐसा काम करने के लिए दिया जिनमें उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, उन्हें सोल्यूशंस निकालने हो। जब बच्चे उसको एक्सेल कर जो बच्चे उस चीज़ से निकल जाएंगे वो एक ग्रुप बन जाएगा, फिर ठीक है, उसको टायर 2 में शिफ्ट किया जाएगा ताकि उन्हें और प्रोजेक्ट बेस्ड और एडिशनल असाइनमेंट्स दी जाएं ताकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके, या ये कह लें कि और ज़्यादा उनका प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज हो। सो टायर 2 में जब ये बच्चे जाते हैं एडिशनल प्रोजेक्ट्स के साथ जो बाकी क्लास को नहीं मिल सकता, लेकिन इनको इनकी गिफ्टेडनेस की वजह से, गिफ्टेड और टैलेंट्स की वजह से जो है इनको मिला है वो प्रोजेक्ट, तो इस वजह से इनका ये टायर 2 में आ जाते हैं। रहते उसी क्लासरूम में है लेकिन थोड़े अरसे के लिए, जैसे स्पेशल एजुकेशन में होता है कि हम सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उसको थोड़े अरसे के लिए बच्चे को थेरेपीज और इंटरवेंशंस प्रोवाइड करने के लिए वहां से निकालते हैं क्लासरूम से 1 या 2 घंटे के लिए। इसी तरह से इन बच्चों की एजुकेशनल नीड्स जो कि एडवांस लेवल की एजुकेशनल नीड्स है उनको पूरा करने के लिए इनको क्लास से बाहर निकाला जाएगा ताकि इन पर काम किया जा सके। सो टायर 2 में क्या हो रहा है, टायर 2 ऑल्सो क्लस्टर्स हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स फॉर स्पेशल एक्टिविटीज. Advanced placement courses at the secondary level are an example of modest curricular changes to accommodate students at this level. For example, summer camps, special summer programs that present brief but intense experiences in mathematics or in science or in creative writing are also a popular way to satisfy the curiosity and desire for learning among children with special gifts and talents. So, आपको पता है गिफ्टेड अंडर अचीवर्स भी होते हैं। यहाँ पे बात की गई कि गिफ्टेड अंडर अचीवर्स की, कि हमने टायर 2 में रहते हुए उनको एक्स्ट्रा करिकुलम, एक्स्ट्रा क्लासेस या एक्स्ट्रा वे में उनको ले जाकर पढ़ाने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब टायर 2 की मज़े की बात यह है कि टायर 2 में जो गिफ्टेड अंडर अचीवर्स हैं कैन ऑल्सो रिसीव स्पेशल काउंसलिंग डिजाइन टू रेमिडिएट देयर परफॉर्मेंस एज पार्ट ऑफ देयर टायर 2 एक्टिविटीज। जहाँ पे टायर 2 एक्टिविटीज में उनको प्रॉब्लम आ रही हो तो वहाँ पर उनको अचीव करवाने के लिए उनको काउंसलिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा सकती हैं। सो उसके बाद आता है टायर 3। जब एप्टीट्यूड लेवल बहुत ज़्यादा हो या इनमें से भी कुछ बच्चे, उस ग्रुप में से भी कुछ बच्चे ऐसे हों जो कि और आगे तक जा सके, तो फिर टायर 3 की उससे भी ज़्यादा एडवांस्ड इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं। Tier 3 represent a separation from the regular program as recognition of the huge knowledge and aptitude differences between some students and the average program. So the difference is clear. What can be done? Tutoring programs for specially talented students in art and music also fit into Tier 3 activities, कि हम उन्हें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे गार्डनर ने हमें 9 पॉइंट्स दिए हैं तो हम उन्हें बाकी उनके इंटेलिजेंस के एरियाज में भी पॉलिश करने की कोशिश करते हैं, तो हम टायर 3 की तरफ भी बच्चे को लेकर जाते हैं। सो जब हमने इनके लिए एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स प्लान करने हैं, इनको प्रोग्राम्स या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो हमें कुछ पॉइंट्स देखना ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि ये 3 इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स या पॉइंट्स बताए हैं जो कि हम किसी भी बच्चे के लिए प्रोग्राम या सर्विस को प्लान करने के लिए इनको मद्देनज़र रख सकते हैं। Mastering important conceptual systems that are at the level of their abilities and various content fields. मुख्तलिफ फील्ड्स के हवाले से उन्हें conceptual system समझाना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो मास्टरी हासिल कर सकें उसमें। Developing skills and strategies that enable them to become more independent and creative. ऐसी skills और strategies develop करें जिससे वो ज़्यादा independent और creative मज़ीद हों, उनको पॉलिश इस तरह से किया जाए। Developing player in an excitement about learning that will carry them through the routine that is an inevitable part of the learning process. उनमें एक क्यूरोसिटी, प्ले और एक्साइटमेंट जो है वो उसको ख़त्म नहीं होने देना, उसको मोटिवेशन की ज़रूरत है इन बच्चों को अभी, ताकि वो मज़ीद परफॉर्म करें, वो मज़ीद प्रोडक्टिविटी लेवल दें। अगर हम इन ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करें तो हम बच्चे को काफ़ी आगे तक लेकर जा सकते हैं। अब हमने आरटीआई मॉडल को डिस्कस किया एजुकेशनल कंसिडरेशंस के हवाले से और उनकी प्लेसमेंट को भी देखा।
नेक्स्ट फर्दर हम मज़ीद इनकी प्लेसमेंट को देखते हैं कैसे अडेप्टिंग द लर्निंग इन्वायरमेंट में। तीन चीज़ें हमने पहले पढ़ा कि जब एजुकेशनल कंसिडरेशंस की बात करते हैं तो हमने तीन क्वेश्चंस को देखा। जब स्टार्ट की जो फर्स्ट स्लाइड है आपकी, जिसमें सॉरी जिसमें ये है कि एजुकेशनल कंसिडरेशंस की जब हमने बात की तो उसमें ये था कि किस तरह से जो है हम बच्चों को, तीन तरह के क्वेश्चन थे, वेयर टू टीच, व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो वेयर टू टीच है कि अडेप्टिंग द लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए इनके लिए, कि इनकी जैसे वो प्लेसमेंट और सर्विसेज वो भी इसी पॉइंट में फिट हो जाएगा आपका। टीचर्स कैन चेंज द लर्निंग इन्वायरमेंट इन मैनी वेज बट मोस्ट ऑफ दोज वेज आर डिजाइन टू ब्रिंग चिल्ड्रन हु हैव गिफ्ट्स टुगेदर फॉर इंस्ट्रक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. So the aim is threefold: to provide students who have gifts with an opportunity to interact with one another and to learn with and be stimulated by their intellectual peers, कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन का मौका देना है बच्चों को। दूसरी चीज क्या है? टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ एबिलिटीज एंड परफॉर्मेंस विद इन द ग्रुप on instructionally relevant dimensions. Past achievement, for example, to make it easier for the teacher to provide instructionally relevant material. What is the third threefold? To place students who have gift with an instructor who has expertise in working with such students or in a relevant field, because changing in the learning environment affect the entire school system. They have received more attention at the school and district level than have changes in skills and content which remain primarily classroom issue. Still, the three elements are closely related. Changes in the learning environment for students who have gift are often necessary to meet the instructional goals of special skills and differential content mastery. So, a number of strategies are being used to modify the placement of gifted students to meet their special needs. These strategies are of two main types. First is flexible placing and second is grouping. कि किस तरह से हम इन बच्चों को, मतलब कौन सी प्लेसमेंट इनके लिए ज़्यादा बेस्ट होगी। तो पहली बात है फ्लेक्सिबल प्लेसिंग. A variety of educational adjustment allow students to move more rapidly through the standard curriculum after they have shown mastery of the standard lessons. Accelerating a student to the next grade is one approach, or student may be allowed to test out of courses if they can show consistent mastery of the material. Students who manifest clearly advanced development can be considered for early entrance to the next level, whether it be kindergarten or college. सो फ्लेक्सिबल पेसिंग होनी चाहिए, वैरायटी ऑफ एजुकेशनल एडजस्टमेंट बच्चे को प्लान करनी चाहिए, ताकि बच्चा अगर एक करिकुलम से उसने मीटअप कर लिया है उस क्लास के, तो उसको ये अलाउ किया जाए कि वो दूसरे करिकुलम में या दूसरी क्लास में जंप अप कर सके। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन का प्रोसेस। सेकंड इज ग्रुपिंग. This strategy brings students with gifts together for learning so that they can go at an advanced pace and be stimulated by others of like ability. मतलब एक तरह की एबिलिटीज के जो लोग हैं उनकी ग्रुपिंग करवा दी जाए ताकि वो उनमें से और एक्सेल कर सकें और एडवांस पेस पे आगे जाएं. This can be done through a special class, a part-time special class, or cluster grouping, which brings 6 to 10 gifted students together. It is tier 2 activity to form a subgroup within the larger classroom. एक larger classroom में सब ग्रुप बन जाता है उन बच्चों का जो कि हाई एबिलिटीज के साथ है। ठीक है, जैसे 6 से लेकर 10 तक बच्चे हो गए, इतने बच्चों का ग्रुप, और आप उनको कोई स्पेशल क्लास या पार्ट टाइम स्पेशल क्लास या क्लस्टर ग्रुपिंग, या तीन टाइप्स हैं ग्रुपिंग की। ठीक है, स्पेशल क्लास, पार्ट टाइम स्पेशल क्लास, और थर्ड इज क्लस्टर ग्रुपिंग, कि हम उनको थोड़े अरसे के लिए क्लास से बाहर निकालते हैं और या तो उनको स्पेशल क्लास में बिठाते हैं या पार्ट टाइम के लिए बिठाते हैं, या क्लस्टर ग्रुपिंग कर दी जाती है उन बच्चों की।
So, the great current interest in the strategy of inclusion for children with disabilities has also influenced education for students who have gifts. Despite efforts at inclusion, many school systems rely on pull out programs and resources rooms conducted by specially qualified teachers to modify the regular program in important ways to meet the educational needs of students with special gifts and talents. The third thing is student acceleration. What we are thought about student acceleration. We can adapt the educational program by abandoning the traditional practice of moving from grade to grade and by varying the length of the educational program because more and more knowledge and skills must be acquired at the highest level of the profession. Students who have talents and gifts and who are seeking advanced degrees or professional training in fields such as medicine can find themselves still in schools at age 30 and beyond. While skilled workers are earning a living and starting families, students with gifts are often dependent on others for a good part of their young adult lives. The process of student acceleration, passing students through the educational system as quickly as possible, is a clear educational objective for some children कि हम बच्चों को जल्दी पास आउट करवा देते हैं उनको क्लासेस स्किप करवा देते हैं ठीक स्टैनले डिस्क्राइब सिक्स वेज ऑफ एक्सेलरेटिंग स्टूडेंट्स स्टैनले ने छह तरीकेकार बताए जिनकी वजह से बच्चों को उनके ग्रेड से एक्सेलरेट करवाया जा सकता है फर्स्ट इज अर्ली स्कूल एडमिशन हम बच्चों को उनकी नॉर्मल एज से पहले ही स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को और सोशल मेच्योरिटी को देखते हुए सेकंड इज स्किपिंग ग्रेड्स हम बच्चों को स्किप करवा देते हैं ग्रेड्स उनकी नीड्स को देखते हुए एजुकेशनल नीड्स को देखते हुए तो ये एक्सेलरेशन की टाइप है थर्ड है टेलीस्कोपिंग रेट जहाँ पर बच्चा जो है स्टैंडर्ड मटेरियल बहुत कम टाइम में कवर कर लेता है यानी कि एक साल में वो दो क्लासेस पढ़ लेता है ठीक है एडवांस्ड प्लेसमेंट द स्टूडेंट टेक कोर्सेज फॉर कॉलेज क्रेडिट while still in high school shortening the college program सो ये एडवांस्ड प्लेसमेंट है कि स्कूल में रहते हुए भी ही वो कॉलेज की कुछ क्लासेस ले रहा है बच्चा डुअल एनरोलमेंट इन हाई स्कूल एंड कॉलेज मतलब दो जगह पे वो इनरोल है ये फिफ्थ पॉइंट है और सिक्स्थ है अर्ली कॉलेज एडमिशन कि कॉलेज में एडमिशन ही जल्दी हो गया लाइक 13 ईयर्स में बच्चा कॉलेज में चला गया ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्सेलरेशन का प्रोसेस है कि बच्चे को किस तरह से हम एक्सेलरेट करवा सकते हैं उसकी एजुकेशनल नीड्स को so the next is adapting curriculum how we can adapt the curriculum for students with gifts and talents after selecting the placement best suitable placement for students with gifts and talents it's very necessary to adapt the curriculum it's very necessary to answer the question what to teach so what to teach it is a very important question an important question today is in the education of gifted students and in all education is are the practices we are using beneficial or do they just represent established practice, which through repetition becomes the established way of doing things? Although a number of practices such as problem solving, problem finding, and using of microcomputers can be used effectively with all students, acceleration and high level curriculum seem to be especially relevant to students with gifts. How does one differentiate the curriculum for students with gifts and talents? Do we expect teachers to compose their own curricula? It is enough that they employ the special curriculum with grace and style, as a concert pianist would play music that he or she has not composed. We should not expect individual teachers to design differentiated curricula, but they are capable of implementing quality curricula that are given to them. So, all these questions are very, very important and very you can say necessary to answer
कि हमने इफ़ेक्टिव एजुकेशन प्रोग्राम्स बच्चे के लिए सिलेक्ट किए हैं या नहीं किए हैं, और अगर सिलेक्ट किए हैं तो उनकी इफेक्टिवनेस किस तरह से है। ऐसी प्रैक्टिसेस करवानी चाहिए जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम फाइंडिंग, कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी के यूज़ से रिलेटेड हों, जो कि इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे। हम ये बात कर सकते हैं या इन 3 डायमेंशंस में रह सकते हैं कि एम्फेसाइजिंग एडवांस्ड कंटेंट नॉलेज दैट फ्रेम्स डिसिप्लिन ऑफ स्टडी, provide higher order thinking and processing, and focus learning experiences on major issues, themes, and ideas that define both real world application and theoretical modeling within and across the areas of study. इन बच्चों को इन तमाम चीज़ों से गो थ्रू करवाना ज़रूरी है कि उनको एडवांस लेवल का कंटेंट दिया जाए जो कि तमाम डिसिप्लिन ऑफ स्टडीज़ को कंप्लीट कर रहा हो। इसके अलावा उन्हें हायर ऑर्डर ऑर्डर थिंकिंग और प्रोसेसिंग की तरफ राग़िब किया जाए, और इसके अलावा उनको ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड किए जाएं जो को उनको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के साथ साथ उनकी थेरीज भी समझा रही हूँ। ये इफेक्टिव एजुकेशन प्रोग्राम्स का हिस्सा बन सकती हैं ये सारी चीज़ें। सेकंड, व्हाट टू टीच second aspect of what to teach is curriculum compacting. Our strategy to help gifted students avoid the chronic boredom of having to learn things that they already know is curriculum compacting. कि वही चीज़ जो हम वो पढ़ चुके हैं हम दोबारा जब उन्हें पढ़ा रहे हैं, तो ये प्रोसेस जो है करिकुलम कॉम्पैक्टिंग कहलाता है। The basic principle of compacting is that if students already know something and have the basic knowledge to apply the have the basic skills to apply the knowledge, they should be allowed to move on to other areas of learning. कि हम उनका curriculum compact कर दें और नहीं अलाउ करें कि वो और दूसरे एरियाज की तरफ जा सकें और जो भी वो लर्न करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कोई क्रिटिकल पॉइंट है। द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कॉम्पैक्टिंग इज दैट स्टूडेंट्स आर अलाउड टू शो देयर नॉलेज व्हेन दे आर रेडी। दे डू नॉट हैव टू वेट अनटिल द क्लास होल क्लास इज प्रिपेयर्ड फॉर द असेसमेंट। मतलब उनको वेट नहीं करवाना चाहिए कि बाकी क्लास असेसमेंट के लिए प्रिपेयर हो जाए तो तभी इस बच्चे की भी असेसमेंट की जाएगी और तभी चेक किया जाएगा कि इसको आगे मूव ऑन करवाना है या नहीं करवाना। नहीं, बल्कि जब वो बच्चा रेडी हो और वो आप कहे कि यस वो कर चुका है इस पोर्शन को कंप्लीट या उसे आता है, तो उसको नेक्स्ट पोर्शन पे मूव करवा देना चाहिए उस सिलेबस से या उससे ही रेलिवेंट किसी मतलब के टॉपिक से। Showing their knowledge can involve a major test and a portfolio of work samples. The level of documentation needed to allow a student to move on depends on the amount of content being compacted. So, आपने ये डिटरमिन करना है कि आपने किस किस तरह से ये जज करना है कि उस बच्चे को उतना कंटेंट आता है। तो आप उसके वर्क सैंपल ले सकते हैं, पोर्टफोलियो बना सकते हैं, उसका टेस्ट ले सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आप फाइल अप करते जाएं ताकि किसी को जब आपने रिस्पॉन्ड करना हो तो आप कर सकें। जैसे कि कुछ स्किल्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं जब हम बच्चे को एसलरेट करवाना चाह रहे होते हैं। उसमें वोकेबलरी आ जाता है, बेसिक एप्लीकेशन स्किल्स आ जाता है, इसके अलावा जो है रीडिंग आ जाता है, फैक्चुअल नॉलेज आ जाता है, बेसिक कॉम्प्रिहेंशन आ जाती है। These areas can be readily assessed to document student mastery. Once students have shown mastery of the basics, they can be released from further direct instructions. So guided practice and independent practice on this set of knowledge and skills. Essentially, curriculum compacting allows students to buy time for other, more appropriate learning experiences. Third thing is content sophistication. Content sophistication challenges students who have gifts to use higher level of thinking to understand ideas that average students of the same age would find difficult or impossible to comprehend. So the objective is to encourage children who have gifts to understand important abstractions, scientific laws, or general principles that can be applied in many circumstances. कि हम बच्चे को और ज़्यादा हायर ऑर्डर और हायर लेवल थिंकिंग की तरफ लेकर जाएं और उसको ऐसी चीज़ें सिखाएं जो कि उसकी नीड है और जो सेम उसी के सेम एज के बच्चे पढ़ते हुए डिफ़िकल्ट फील करेंगे, लेकिन उसको फील नहीं होगा क्योंकि उसका आईक्यू लेवल और उसका इंटेलेक्चुअल जो नीड्स हैं वो इस लिहाज से हैं कि वो उसको
compete कर सकता है। इस वजह से उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, साइंटिफिक लॉज, थेरीज, जनरल प्रिंसिपल्स और इन सब चीज़ों से गो थ्रू करवाने की उसको ज़रूरत है। थर्ड इज व्हाट स्किल्स टू टीच, उसको कौन कौन सी स्किल्स सिखानी है, कौन सी हम स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं उसको स्किल सिखाने के लिए। वन ऑफ आवर गोल इज एजुकेटिंग स्टूडेंट्स विद गिफ्ट्स एंड ऑल स्टूडेंट्स इज टू कैपिटलाइज ऑन स्किल्स दे ऑलरेडी हैव, दैट इज द एबिलिटी टू जनरेट न्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस, कि जो इंफॉर्मेशन उसके पास है वहां से बच्चे को आगे लेकर जाना है, उस पॉइंट से, उस बेस लाइन पॉइंट से उसकी आगे की तरफ, एडवांसमेंट की तरफ लेकर जाना है। So the ability to generate new information from old is extremely valuable. The cognitive processes for doing so can be simple exercises such as preceding examples of gulls, or they can lead to a new solution for global warming, or the discovery of genes linked to cancer, or an improved transportation system. So these all were the topics relevant to the process or providing new information that may be valuable for students with gifts and talents. All students need to increase their ability to generate new information from old, but particularly so for students with gifts who have the capability to deal with problems of greater complexity than do their age mates. So few students, no matter how bright, will be likely to discover on their own calculus, the scientific method, or the creation of depth perspective in art, and all these related topics may be very interesting for students with gifts and talents. So what skills to teach? First is problem based learning, second is cultural differences, and third perspective is time. First is problem based learning. The essence of problem based learning is as follows. The students are presented with an ill structured problem. हम स्टूडेंट को एक ill structured problem देते हैं और उसको solution निकालने को कहते हैं, उसको solve out करने को कहते हैं। सेकंड क्या है, द स्टूडेंट्स आर मेड स्टेक होल्डर्स इन द प्रॉब्लम। दूसरी सिचुएशन क्या है कि हम बच्चे को स्टेक होल्डर बना देते हैं उस प्रॉब्लम का, कि उसने ही इसको सर्च आउट करना है, उसने ही इसको सारा प्लान करना है और उसने ही इसके आंसर तक पहुंचना है। थर्ड क्या है, द इंस्ट्रक्टर प्लेज द रोल ऑफ मेटाकोग्निटिव कोच, नॉट इंफॉर्मेशन गिवर। ठीक है, वो सिर्फ क्लूज देता है उसको, बच्चे को, और वो खुद बच्चा जो है अपने सारे उस प्रॉब्लम में से निकलने की कोशिश करता है। जो इंस्ट्रक्टर जिस प्रॉब्लम इन्वायरमेंट में, प्रॉब्लमेटिक इन्वायरमेंट में उसको डालता है, उससे खुद निकलने की कोशिश करता है। सो यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल वर्क्स, द स्टूडेंट्स ट्राई टू अराइव एट द आंसर। बच्चे कोशिश करते हैं कि वो आंसर्स तक पहुंच जाए, और ये टेक्निक जो है इन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वो है, इंफॉर्मेटिव भी है, बेनिफिशियल भी है। Second is cultural differences. Once students with gifts and talents form a variety of cultures are identified by whatever method we must develop an educational plan. So we must develop an educational plan for their special needs and circumstances. One objective is to encourage a child's understanding of and respect for his or her own cultural background, कि बच्चा जिस भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की काउंसलिंग की जाए, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपकी एक अपनी आइडेंटिटी है, इसको आपने लॉस करने की कोशिश नहीं करनी है। merely placing the exceptional child in a different setting is not sufficient for his or her success. आपने कोई भी एथनिक बैकग्राउंड का, किसी कल्चरल बैकग्राउंड का बच्चा जो है अपनी क्लास में ला के बिठा दिया या उसको बिल्कुल इन्वायरमेंट चेंज कर दिया, तो सिर्फ वो सफिशिएंट नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा सफिशिएंट ये है कि बच्चे को उस प्रॉपर उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट किस तरह से करवाना है। ठीक, आपने बच्चे की काउंसलिंग किस तरह से करनी है कि वो जिस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है वो उसके लिए फुली अप्रोप्रिएट है। सो स्पेशल स्टेप्स नीड टू बी टेकन टू इंश्योर दैट चाइल्ड्स अडेप्टेशन इज अप्रोप्रिएट, कि बच्चा जहाँ आपने प्लेस किया है उसकी अडेप्टेशन अप्रोप्रिएट है एटलीस्ट। So Ford mentions irrelevant curriculum, social, racial, and cultural backgrounds that are incompatible with those of the majority of students, and even a lack of support for those parents who find themselves torn between the culture of the school and the culture of the home as reason for dropping out of a special program.
सो बहुत से बच्चे जो हैं ड्रॉप आउट कर जाते हैं इसी इन्हीं रीजंस की बिना पर, जब वो कल्चरल डिमांड्स को और कल्चरल नीड्स को मीट अप नहीं कर पाते हैं। यार हमारे पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा कल्चर पे फोकस नहीं किया जाता, लेकिन यूएस में बहुत ज़्यादा इस पे काम किया जाता है और रेसिज्म को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। सो थर्ड थिंग इज टाइम, what skills to teach. The third thing is time. The failure to recognize time as the enemy of teachers, and teaching is at the heart of many teachers' disputes. कि आपने बच्चे को एटलीस्ट ये सिखाना है कि उसने टाइम किस तरह से मैनेज करना है। जो एवरेज बच्चा काम कर रहा है जितनी देर में, उससे हाफ में उस बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो काम करे। ठीक, लेकिन ये है कि आपने उस बच्चे को बाकी क्लास के साथ वेट करवाने की तरफ नहीं लेकर जाना। टाइम इज अ फिक्स्ड कांस्टेंट। टाइम जो है फिक्स्ड कांस्टेंट है, जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो बच्चा जो है वो भी उतनी ही देर वेट करे जितनी देर उसके क्लासमेट्स वेट कर रहे हैं। जैसे 180 से 200 दिन होते हैं स्कूल के पूरे साल में। ठीक, तो आप बच्चे को वो स्किल सिखाएं और नॉलेज सिखाएं, लेकिन उसको मास्टरी लेवल तक लेकर जाएं। उसको लिमिट ना करें उसकी लर्निंग को या उसकी स्किल्स को। ठीक, तो अगर बच्चा फास्टर चलना चाह रहा है तो आप उसे जाने दें, उसकी पेस को रोकने की कोशिश मत करें। सो टाइम जो है, ये टाइम मैनेजमेंट की स्किल जो है, ये टीचर्स को भी लर्न करने की ज़रूरत है उन बच्चों के साथ कॉप अप करने के लिए। Next thing is adapting technology. How we can adapt the technology and what kind of technology are available for children with gifts and talents. आप इसको असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, आप इसको टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, और आप इसको इस टॉपिक को अडेप्टिंग टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। जब गिफ्ट्स की बात आती है, गिफ्ट्स और टैलेंट्स की बात आती है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से आप ये स्टूडेंट्स जो हैं रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। दे कैन यूज एवरी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एवरी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। सो द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हैज मेड माउंटेन्स ऑफ नॉलेज easily accessible to every student who has access to a computer. The development is a boon for students with gifts and talents. An entire encyclopedia is available on a single small disk. It's like having a library inside the home. The challenge for the teacher is to ensure that students learn the best way to use the computer as a learning tool. इंसाइक्लोपीडिया आप किसी भी चीज़ पे खोलना चाहें आपके क्लिक पे खुल जाता है। ठीक, तो टेक्नोलॉजी की मदद से घर ऐसे बन चुके हैं जैसे एक छोटी सी लाइब्रेरी हो। तो टीचर्स के लिए ये बड़ा चैलेंज है कि उन्होंने जो कंप्यूटर एक लर्निंग टूल है, उन्होंने स्टूडेंट्स को यूज किस तरह से करना सिखाना है। If teachers know how to access major references or sources of information, they can open the door of more knowledge for their students who can then explore for themselves. One of the advantages of increasingly accessible technology is that more challenging assignments can be legitimately given to students with gifts. Distance learning classes are increasingly becoming available at many sites and should be a great benefit for students with gifts who have exhausted the available coursework in their लोकल स्कूल्स। ऐसे बच्चे जो कि अपने स्कूल्स में प्रोवाइड की जाने वाली इंस्ट्रक्शन से फेड अप हो चुके हैं, या स्कूल जो है उनकी लर्निंग नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा, तो डिस्टेंस लर्निंग जो है इन बच्चों के लिए बहुत बहुत अच्छी और काफ़ी इंफॉर्मेटिव अप्रोच है कि उसको यूज़ करते हुए ये बच्चे नए कोर्सेज या न्यू लर्निंग एक्सपीरियंसेस की तरफ जा सकते हैं। सो a new challenge is teaching students the differences between legitimate information and spurious information. कि अब नया चैलेंज जो टीचर्स के लिए है ना, वो ये है कि बच्चों को लेजिटिमेट इंफॉर्मेशन और स्पूरियस इंफॉर्मेशन में फ़र्क करना सिखाना। क्योंकि जब वो बच्चा टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंफॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है, तो टीचर का रोल जो है ना, वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्टर की बजाय इंस्ट्रक्शनल कोच के तौर पर आ जाता है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करना बन जाती है। लेकिन जब बच्चा जो है टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंफॉर्मेशन ले रहा होता है, तो इंफॉर्मेशन दो तरह की उसको मिलती है, एक लेजिटिमेट होती है और दूसरी स्पूरियस होती है। सो ये टीचर की जिम्मेदारी होती है कि उसने किस तरह से बच्चे को सिखाना है कौन सी इंफॉर्मेशन जो है अप्रोप्रिएट है, ट्रू है, लीगल है, जो कि उसको टेकअप करनी चाहिए, और कौन सी स्पूरियस है जिसको जो फेक है और उसको उसे नज़र
नज़रअंदाज कर देना चाहिए। सो टेक्नोलॉजी के भी बेनिफिट्स भी हैं और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो ये टीचर पे है कि वो किस तरह से बच्चे को उनकी टेक्नोलॉजी की पॉजिटिव साइड दिखाते हुए और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से हमें मिल रही है दुनिया से, उसकी पॉजिटिव साइड दिखाते हुए बच्चों को किस तरह से जो है एडवांसमेंट की तरफ लेकर जा सकता है। So the last thing to discuss is transition into adulthood. हमने ट्रांजिशन का जिक्र हर डिसेबिलिटी के हवाले से किया, लेकिन यहाँ पर हम एक्सेप्शनैलिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम गिफ्ट्स और टैलेंट्स की बात कर रहे हैं। तो जब इनको मूव अप करवाना है, इनकी ट्रांजिशन करवानी है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो स्पेशल जो टैलेंट्स के साथ या गिफ्ट्स के साथ बच्चे होते हैं, इनके लिए करियर और एजुकेशन ये कोई मैटर नहीं करती है। ये बहुत जल्दी एक्सेल कर जाते हैं, ये बहुत जल्दी इनरिच कर जाते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम इस तरह की आ जाती है कि इनके साथ डिसेबिलिटी भी अटैच हो जाए, फिर इनको एक्सेल करने में प्रॉब्लम होता है। लेकिन अभी हम सिर्फ ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, तो ट्रांजिशन की बात करते हुए सबसे ये कहना ज़रूर बेहतर होगा कि ये जो बच्चे हैं, इनके लिए जो अचीवमेंट्स हैं वो इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती हैं। फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल गिफ्ट्स और टैलेंट्स हु आर अचीविंग नियर देयर पोटेंशियल एंड आर गिवन अपॉर्चुनिटीज टू टेक ऑन adult roles, the transition from adulthood from childhood to adolescence to adulthood and from high school to higher education or employment are typically not very problematic. Particularly by adolescence, these students tend to be aware of their relative strengths and weaknesses. This means that they might not see themselves as gifted in their areas of relative weakness, even though they perform as well as or better than the majority of their age peers in those areas. So, in many ways, transition for these youth tend to mirror the problems in transition faced by adolescents and adults with disabilities. Not all adolescents and young adults with special gifts or talents take transition in stride. तमाम लोग ट्रांजिशन को स्ट्राइड में नहीं ले पाते हैं। क्यों? मैनी नीड पर्सनल एंड करियर काउंसलिंग एंड अ नेटवर्किंग सिस्टम दैट लिंक स्टूडेंट टू स्कूल एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज। बहुत से गिफ्टेड बच्चों को भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, और जब उन्हें अप्रोप्रिएट काउंसलिंग नहीं मिल पाती है, तो ज़रूरी नहीं कि वो अपने गिफ्टेड एज मेट्स की तरह वैसे ही एक्सेल कर रहे हों, बल्कि हो सकता है कि वो पीछे रह जाएं। क्यों? क्योंकि उनकी स्कूल और कम्युनिटी की तरफ से उनको ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड ही नहीं किए गए जो उन्हें आगे लेकर जाते हैं। So many personal and career counseling and a networking system that links students to school and community resources. If there is a central issue in the education of adolescents with special gifts or talents, it is that of acceleration versus enrichment. जो सेंट्रल इशू आ रहा है ना इसमें कि ट्रांजिशन में या इनके टैलेंट्स को अचीव करने में इनके लिए, वो है एक्सेलरेशन और इनरिचमेंट का डिफरेंस, या एक्सेलरेशन और एनरिचमेंट में इनका फंस जाना। एक्सेलरेशन को हमने पीछे डिस्कस किया कि जब हम बच्चों को क्लास और ग्रेड स्किप करवा देते हैं उसकी इंटेलिजेंस लेवल को देखते हुए। इनरिचमेंट क्या है? Proponents of enrichment believe that these students need continued social contact with their age peers. They argue that such students should follow the curriculum of their age peers and study topics in greater depth. एनरिचमेंट वाले ये कहते हैं कि इनको आप क्लास स्किप ना करवाएं, बल्कि इनको उसी क्लास में उसी सोशल ग्रुप में रहने दें। उस जैसे बच्चा 4th क्लास में है, तो उसको ये नहीं कि आप स्किप करवा के, अगर वो 5th क्लास तक के लेवल की या 6th क्लास तक के लेवल की जहानत रखता है, तो इनरिचमेंट के प्रोपोनेंट्स ये कहते हैं कि ये नहीं कि आप उसे स्किप करवा के 6th क्लास में कर दें या 5th क्लास में कर दें, बल्कि उसे उसी क्लास में रहने दें और टॉपिक जो आप उन्हें पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा एनरिच, ज़्यादा डेप्थ वाला मटेरियल उसको प्रोवाइड कर दें। जबकि proponents of acceleration believe that the only way to provide challenging and appropriate education for students with special gifts and talents is to let them compete with older students younger than them older than them sorry, कि ऐसे बच्चे के साथ उन्हें compete करने दिया जाए जो कि उनसे बड़े हों। So these educators argued that because the cognitive abilities of these students are advanced beyond their years, these students should proceed through the curriculum at an accelerated pace. So acceleration for adolescents with special gifts or talents can mean enrollment in advanced placement courses,
early entrance to college, early entrance to university. So these are the uh, some suggestions that proponents of acceleration give. So both beyond acceleration and enrichments, adolescents with special gifts or talents often need attention to social and personal development if they are to make successful and gratifying transition to adulthood and careers. So अगर हम दोनों ही बातों को छोड़ें, अगर हम enrichment की बात भी नहीं करते, अगर हम acceleration की बात भी नहीं करते, तो ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो बच्चे होते हैं जो स्पेशल गिफ्ट्स और टैलेंट्स के साथ होते हैं, इनको सोशल और पर्सनल डेवलपमेंट में अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों ज़्यादा ज़रूरत होती है? क्योंकि ज़ाहिर है इनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो इतना ज़्यादा है कि बाकी लोग इनकी डिमांड्स को, नीड्स को अक्सर पूरा नहीं कर पाते हैं। सो इनको ज़्यादा पर्सनल ग्रूमिंग की और सोशल ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है। लाइक अदर ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स विद स्पेशल characteristics and need, they may benefit from opportunities to socialize with and learn from other students who have similar characteristics and face similar challenges. They may be able to obtain particular benefit from reflecting on the nature and meaning of the life and the directions they choose for themselves. So, given proper support, they can often make use of self determination and survival skills more meaningfully. So, ज़्यादा मीनिंगफुल वे में ये जो है उस ट्रांजिशन के फेज से गुजर सकते हैं अगर इनको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड की जाए तो। नेक्स्ट टॉपिक इज, जो कि आपकी आउटलाइन में तो नहीं है लेकिन हम इसको डिस्कस ज़रूर करेंगे क्योंकि ये गिफ्टेड चिल्ड्रन से रिलेटेड है और गिफ्टेडनेस का हिस्सा है, जैसे हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में ही ट्वाइस एक्सेप्शनल का जिक्र किया था इस कोर्स के फर्स्ट लेक्चर में। सो ये बात भी बड़े कंसर्न की है कि जो ये बच्चे हैं इनके गिफ्टेडनेस और टैलेंट्स तो हैं इनमें, लेकिन अगर वो गिफ्टेडनेस और टैलेंट्स विद डिसेबिलिटीज हों तो क्या किया जा सकता है? फिर वहाँ पर टीचर का क्या रोल है, वहाँ पर टीचर ने किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से टेकअप करना है सिचुएशन को। सो इट सरप्राइजेस मैनी पीपल टू लर्न दैट स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज कैन ऑल्सो बी गिफ्टेड। ये बहुत से लोगों को ये बात सरप्राइज करेगी कि जो डिसेबिलिटीज के साथ बच्चे हैं वो गिफ्टेड भी हो सकते हैं। ये कोई मतलब कि ऐसी बात नहीं है कि लोग इसको अंडरस्टैंड ना कर सकें। बहुत से बच्चे ऐसे जो कि गिफ्टेडनेस के साथ हैं वो हो सकते हैं डिसेबिलिटीज़ के साथ या मुख्तलिफ डिसेबिलिटीज़ भी इनके साथ अटैच हों। So some disabilities such as learning disabilities may mask giftedness on test scores and in classroom academic performance. Giftedness may also mask a disability. So क्या कहा जा रहा है कि हो सकता है बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ हो लेकिन वो गिफ्टेड हो किसी अपने एरिया में, किसी स्किल में। So the combination of giftedness and disability entails a complicated set of behaviors and attitudes that confuse and challenge educators and parents. Students with dual exceptionalities whose giftedness goes unidentified are especially likely to underachieve or even drop out of school. ऐसे बच्चे ज़्यादा एट रिस्क हैं जिनकी गिफ्टेडनेस पहचानी ही नहीं जाती है उनकी डिसेबिलिटीज़ की वजह से। तो ऐसे बच्चे जो हैं ये डुअल एक्सेप्शनैलिटीज़ के साथ होते हैं और ये अनआइडेंटिफाई होने की वजह से, ये रिकग्निशन ना पाने की वजह से अंडर अचीवर होते हैं या फिर ये ड्रॉप आउट रेट जो है इन बच्चों का बहुत ज़्यादा होता है। So factors impeding the identification of gifted students who have disabilities may include low self-esteem, lack of motivation, poor organizational skills, disruptive behavior, and poor concentration skills. So बहुत से फैक्टर्स जो कि इन बच्चों की आइडेंटिफिकेशन को रोकते हैं, तो वो लो सेल्फ एस्टीम है, लैक ऑफ मोटिवेशन है, पुअर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं, डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर है या पुअर कंसंट्रेशन स्किल्स हैं, जो कि इन बच्चों को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या हम सिर्फ इनके इन जो लैकिंग पॉइंट्स हैं इन्हें ही बस देख रहे होते हैं। सो बॉल्डविन एट ऑल रिकमेंड building on students' interest, implementing adaptation and accommodations that address strengths and learning needs and supporting students socially and emotionally. So Baldwin और उसके proponents जो हैं वो ये कहते हैं कि वो रिकमेंड ये करता है कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को डेवलप किस तरह से किया जा सकता है।
बेहतर अडेप्टेशन और अकोमोडेशन उसकी नीड्स को, लर्निंग नीड्स को समझते हुए उसके साथ उसके लिए प्लान की जाए और उससे सोशनली और इमोशनली सपोर्ट किया जाए. So, इसके लिए King recommended that teachers support the social and emotional needs of twice exceptional student by doing the following. टीचर किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं इन बच्चों को जो कि ये ट्वाइस एक्सेप्शनल हैं या डुअल एक्सेप्शनैलिटीज के साथ हैं. Promote students self understanding and self acceptance with objective information about their disabilities and their strengths. बच्चे की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है बच्चे का टीचर ने. ठीक है, तो वो किस तरह से कर सकते हैं कि उनको उनकी डिसेबिलिटी के बारे में बताया जाए और उसके बाद उनकी स्ट्रेंथ्स बताई जाएंगे, भाई आप में ये स्ट्रेंथ्स हैं. सो अपनी डिसेबिलिटी को ओवरकम ना करने दें बल्कि अपनी स्ट्रेंथ्स को ओवरकम करने दें डिसेबिलिटी के ऊपर. सो इनकरेज स्टूडेंट्स टू सक्सीड एंड enlist सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स एंड अदर टीचर्स इन दिस endeavor. कि स्टूडेंट्स को सक्सीड करने के लिए इनकरेज करें और दूसरे टीचर्स की या पेरेंट्स की हेल्प इस मामले में ली जा सकती है. टीच स्ट्रेटजीज फॉर कॉपिंग विद फ्रस्ट्रेशन. Monitor the emotions that accompany students' frustrations and perceived failures and provide counseling if needed. Help students establish and maintain friendships. Help parents understand their child's giftedness and disability, emphasizing the child's potential. Make students aware of their potential and encourage them not to sell themselves short when setting future goals and career planning. It is very important. So, provide adult mentors who are also twice exceptional. So, बच्चे को ये आपने ज़रूर सिखाना है कि उन्होंने अपनी पोटेंशियल्स या अपनी इंकरेजमेंट जो है वो बेच नहीं देनी है. ठीक है, उन्होंने अपनी करियर की जो फ्यूचर प्लानिंग है उस पर ज़्यादा फोकस करना है. और बच्चे को ट्वाइस एक्सेप्शनैलिटीज के साथ जो अडल्ट मेंटर्स हैं या एग्जाम्पल या रोल मॉडल्स हैं उनसे मिलवाना ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे की इंकरेजमेंट के लिए. So, an appropriate education for gifted students with disabilities requires what neo terms are duly differentiated curriculum. ड्यूली डिफरेंशिएटेड करिकुलम की बात ये की जा रही है कि ऐसे बच्चे जो गिफ्टेड हैं लेकिन डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं उनके लिए जब एजुकेशनल सेटिंग की हम बात करते हैं तो उनके लिए जो करिकुलम हो वो ड्यूली डिफरेंशिएटेड करिकुलम होना चाहिए. That recognize and meet the needs of students who exhibit two contradictory sets of learning characteristics by creating a balance between nurturing the students' strengths and compensating for their learning deficits. कि दो तरह के लर्निंग नीड्स को वो पूरा कर रहा होगा कि एक तो उसकी स्ट्रेंथ्स को नर्चर कर रहा होगा और दूसरा कंपनसेट कर रहा होगा लर्निंग डेफिसिट्स के साथ. So the special education and related services implemented to meet the students' needs that result from the disability do not trump the student's need to be challenged in his or her domain of giftedness and talent. So हमारे गिफ्टेडनेस का टॉपिक भी कंप्लीट हुआ. होपफुली आपको काफ़ी जो है ओरिएंटेशन हो गई होगी इस हवाले से. फिर भी कोई भी क्वेश्चन जो गिफ्टेडनेस के टॉपिक से रिलेटेड हो तो वो हम अपने जूम सेशन में डिस्कस कर सकते हैं. सो this was from my side in today's lecture. In today's lecture, we discussed the educational consideration for gifted children, the services that we can plan, the transition into adulthood and technology, and as well as we discussed the twice exceptional and persons with dual exceptionality. So, hope to see you in next lecture. Allah Hafiz.